morning dear students. Students, in the previous class we have started with the topic of blood grouping. We said that it is very important to match the blood groups before any type of blood transfusion, because it is important to check the compatibility of the antigen present on the RBC with the antibody present in the blood plasma. So RBCs of human, the surface of RBCs in humans has presence of different types of antigen. Based on this antigen, there were different types of blood group. Person with antigen A on its RBC has the blood group A, and the person with B antigen on RBC has the blood group B. Person having both A and B antigens on the RBC surface has the blood group AB, whereas those which do not have any antigen on the RBC have the blood group O. Opposite will be the presence of the antibody. Person with blood group A has antibody B, and person with blood group B has antibody A in their blood plasma. Individuals with AB blood group do not have any antibodies, whereas individuals with O blood group have both A and B antibody in their blood plasma. If the antigens and antibodies do not match, this will result into clotting, clumping or agglutination of the blood cells. And once it is agglutinated, sometimes it can be very severe that it can even lead to death of the person. So it is very important to check for the compatibility of the antigen and antibody. So there were two types of blood grouping systems, ABO system, which we have previously discussed, and today we are going to discuss about the RH blood grouping system. So just like ABO blood group where there was antigen A and B, in RH blood grouping system we are talking about the antigen RH, which is also present on the surface of the RBC. So RH is the antigen. RH is the antigen present on the surface of RBC in humans. Okay, so just like there was any other antigen which was genetically derived, right? कौन सा antigen होगा वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है. सेम वे यहाँ पे भी RH एंटीजन होता है जिसका फॉर्मेशन भी जेनेटिकली डिराइव्ड है. तो RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द RBC. This RH antigen was first of all discovered by the researcher Landsteiner. Okay, so here also it was discovered by the researcher Landsteiner, जिन्होंने सबसे पहली बार RH एंटीजन को आइडेंटिफाई किया था, एंड दैट ऑन in the blood of the monkey. Rhesus monkey जो होता है, that is a species of monkey. Rhesus monkey के ब्लड में ये RH एंटीजन सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था. In the blood of Rhesus monkey. और उसी जो स्पीसीज है मंकी की, रेसस मंकी, उसी के बेसिस पे हमने RH जो है वो टर्मिनोलॉजी दिया है, RH ब्लड ग्रुपिंग. RH ओवर हियर स्टैंड्स फॉर द रेसस एंटीजन प्रेजेंट ऑन द RBC. और ये रेसस एंटीजन सबसे पहली बार मंकी जो था, रेसस मंकी, उनके ब्लड में देखा गया था, इसीलिए इट इज नेम्ड एज RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. नाउ most of the individuals, 85% of individuals are RH positive, जिसका मतलब है कि उनके RBC पे RH एंटीजन प्रेजेंट है. ओके, सो इफ RH एंटीजन is present on RBC तो उसे कहा जाएगा RH पॉजिटिव. RH पॉजिटिव ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. एंड इफ
मतलब जिनके पास RH एंटीजन है और RH नेगेटिव, इनके लिए जिनके पास RH ग्रुप नहीं है। आपने शायद सुना होगा कि हम ऐसा बोलते हैं कि माई ब्लड ग्रुप इज A पॉजिटिव या A नेगेटिव, सो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवर हियर स्टैंड्स फॉर RH। पर्सन जिनके पास A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है तो उन्हें कहेंगे हम A पॉजिटिव, और जिनके पास A एंटीजन है पर RH एंटीजन नहीं है तो उनको कहेंगे A नेगेटिव, राइट। तो इंडिविजुअल्स के बारे में आपने सुना होगा, सम हैव A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, सम हैव O नेगेटिव, AB नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव यूज कर रहे हैं उसका मतलब कि उनके आरबीसी पे RH एंटीजन नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट AB एंटीजन है उतना ही इंपॉर्टेंट RH एंटीजन भी है to check during the blood transfusion. Okay, so here 85% individuals are RH positive and 15% are RH नेगेटिव। ठीक है, मोस्टली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ 15% ऐसे हैं जो RH नेगेटिव है। नाउ दिस RH ग्रुपिंग poses a problem in two conditions, that is blood transfusion and secondly during pregnancy. So here we are going to talk about incompatibility during pregnancy. इनकम्पैटिबिलिटी मतलब RH ग्रुपिंग के तरफ की वजह से होने वाला प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या मैं कह रही हूं यहाँ पे कि जैसे A B ब्लड ग्रुप है, A है, B है, AB है, ठीक है, तो उनमें प्रॉब्लम कब आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए तो हमने लिखा था कि A वाले ब्लड ग्रुप वाले किसे डोनेट कर सकते हैं और किसे रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा वो दूसरे ब्लड ग्रुप्स को डोनेट या रिसीव नहीं कर सकते, राइट। अदरवाइज क्या कहला जाएगा, इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रेगनेंसी के वक्त RH ग्रुपिंग जो है वो एक इनकम्पैटिबिलिटी, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो प्रॉब्लम काफी सीरियस होता है। अब ऐसा प्रेगनेंसी के वक्त RH ग्रुपिंग का क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात करते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी क्यों है यहाँ पे, तो इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फादर इज RH पॉजिटिव and mother is RH negative, right? यहाँ पे कंडीशन है, सबको नहीं होती, सबको इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी ऑब्वियसली, किसे होगी, तो इन केस व्हेन फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव, तो इनसे जो चाइल्ड बॉर्न होगा द चाइल्ड विल बी RH पॉजिटिव, राइट। क्यों, क्योंकि RH पॉजिटिव जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए आप मोस्टली इंडिविजुअल्स का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही सुनोगे और कम ऐसे लोग होंगे जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, A हो, B हो, AB हो, पर पॉजिटिव हो, ठीक है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव ऐसे, और मदर का नेगेटिव हो, तो उनसे जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है वो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, RH पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो कंडीशन होने वाली उसी की बात कर रहे हैं, द चाइल्ड विल हैव द ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, व्हाटएवर इज द ब्लड ग्रुप, बट इट विल बी हैविंग द RH एंटीजन। नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट मदर इज नेगेटिव एंड द चाइल्ड इज पॉजिटिव। सो व्हाट डज मदर डू इन दिस कंडीशन during first pregnancy mother starts developing antibody against RH antigen, राइट। क्या होगा इस कंडीशन में, अब देखिए चाइल्ड जो है उसके पास एक ऐसा एंटीजन है जो मदर के पास नहीं है, ठीक है।
तो चाइल्ड के पास एक ऐसा एंटीजन है, अब हमने बात की कि एंटीजन अगर ऐसा हो जो मदर के पास पहले कभी ना हो, तो मदर के सेल्स इस एंटीजन को फॉरेन एंटीजन कंसिडर करते हैं, मतलब कुछ बाहर से एंटीजन आया है ऐसा कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से एंटीजन के अगेंस्ट में मदर क्या डेवलप करने लगती है, शी स्टार्ट्स डेवलपिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन, राइट, क्योंकि उसके लिए वो एंटीजन क्या हुआ, फॉरेन हुआ, कुछ बाहर का एंटीजन हुआ। दिस इज द सेम कंडीशन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है, राइट, ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो उसके पास एंटीजन ए है, अगर बाहर से किसी ने बी एंटीजन दिया तो मदर के एंटीबॉडी उसे क्या कंसिडर करते हैं, फॉरेन, और इमीडिएटली क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट इट, किल इट, राइट। बट अभी जो एंटीबॉडी बने हैं वो बहुत ही कम एंटीबॉडी है और इतने इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए जो पहली डिलीवरी होगी चाइल्ड की, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। स्टिल द फर्स्ट चाइल्ड will not suffer from any adverse situation, right? क्या हुआ है कि पहली बार जब एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होता है तो ये एंटीबॉडी बहुत ही कम होती है और इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इतनी इफेक्टिव ना होने की वजह से वो RH एंटीजन को कोई भी तरह से हार्म नहीं कर पाती, क्योंकि मदर का और जो फिटस है, राइट, जो उनके वूम में ग्रो हो रहा है, उनका ब्लड जो है दैट इज नॉट वेरी रेडिली एक्सचेंज, राइट, इसलिए पहली जो डिलीवरी है दैट इज गोइंग टू बी सेफ, द फर्स्ट चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू सफर फ्रॉम एनी सच प्रॉब्लम, राइट। बट इन सेकेंड प्रेगनेंसी, राइट, इन सेकेंड प्रेगनेंसी, नाउ इन सेकेंड प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन, दैट इफ द चाइल्ड is RH पॉजिटिव अगेन, ठीक है, वापस से चाइल्ड जो बॉर्न हो रहा है सेकेंड प्रेगनेंसी में, दूसरा जो चाइल्ड है, अब ये चाइल्ड भी RH पॉजिटिव है। अब मदर के पास ऑलरेडी क्या है, प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही है, राइट। द एंटीबॉडी ऑफ द मदर will kill the RBCs of the fetus. Will kill the RBCs of the fetus, right? क्यों किल कर रहा है, क्योंकि मदर के पास ऑलरेडी अब एंटीबॉडी है। पहले क्या था, एंटीबॉडी कोई थी नहीं, राइट, एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ ये देख के कि कोई एंटीजन एंटर हुआ है तो उसके सामने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया, पर इतनी जल्दी एंटीबॉडी बन नहीं जाती, इट टेक्स टाइम एंड देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द एंटीजन इज गोइंग टू बी वेरी पुअर। इसकी वजह से पहला चाइल्ड जो है वो सेफ था, पर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर चाइल्ड RH पॉजिटिव है तो मदर के पास तो प्री प्रिपेयर्ड अब ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडी है ही, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द RH एंटीजन। जो चाइल्ड के पास जो RH एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी ऑलरेडी रेडी है उनके ब्लड में, इसीलिए ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडी विल ट्राई टू किल द एंटीजन, fight with the antigen present on the RBC of the fetus, and therefore as it is considered foreign to body, ये जो fetus है उसके बहुत से RBCs जो है they are going to be killed, many RBCs are going to be killed, and as a result the child or the fetus will बी एनेमिक। एनेमिक मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आरबीसी काउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, मतलब जब वो चाइल्ड बॉर्न होगा तो उसमें आरबीसी का नंबर बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स आरबीसीज गॉट किल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी। Sometimes this can be so much fatal that it can lead to the death of the infant also, right? जो चाइल्ड है, जो फिटस है, उसकी डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, तो ऐसी भी कंडीशन होती है और इसे कहा जाता है, दिस इज नोन
This condition is known as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? Erythroblastosis fetalis या तो hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn. हीमोलाइटिक मतलब हीम मतलब आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो, और लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। यहाँ पे जो आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन which is foreign to the antibody of the mother, and therefore such a condition is called erythroblastosis fetalis. This is a very frequently asked question, that what is erythroblastosis fetalis. So you have to take it in your mind that पहला जो डिलीवरी है वो सेफ होगा क्योंकि यहाँ पे इतने एंटीबॉडी बने नहीं है, क्योंकि मदर के पास तो ऐसा कोई एंटीजन है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने एंटीबॉडी डेवलप कभी नहीं किए। पर अगर ये पहली बार जब एक्सपोजर हुआ तो थोड़े बहुत एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, पर दूसरी बार जब ऐसी कंडीशन होती है तो मदर के पास एंटीबॉडी है ही, इसलिए थ्रू दैट एंटीबॉडीज इट विल किल द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज ऑफ द fetus, and this will result into loss of many RBCs. Loss of many RBCs का मतलब हुआ that the child will be anemic, RBC काउंट बहुत ही कम होगा, या तो एक्सट्रीम केसेस में the child can even die. And this condition is called erythroblastosis fetalis or hemolytic disease of the newborn. The only way to get a treatment from it is, अगर पहले से ही ब्लड ग्रुप पता ही है तो इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि मदर को एंटी-आरएच एंटीबॉडी दिया जाता है, मतलब एंटीबॉडी की इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए दूसरा ड्रग दिया जाता है विच इज एंटी-आरएच एंटीबॉडी। ये देने से मदर के जो एंटीबॉडी है वो आरएच एंटीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटी-आरएच एंटीबॉडी रिमूव्स द एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। अब एंटीबॉडी रिमूव हो जाएगा तो आरएच एंटीजन रिकॉग्नाइज होगा नहीं, और अगर आरएच एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो रिमूवल ऑफ द आरबीसीज फ्रॉम द fetus, नो किलिंग ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द fetus, and the child can be born as healthy, right? तो अभी तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है जिसमें एंटी-आरएच एंटीबॉडी दिया जाता है मदर को if the mother is having a negative blood group. If mother is having positive blood group, this problem is not going to occur, right? क्योंकि mother भी positive है और child भी positive है, तो यहाँ पे कोई issue नहीं होगा। The issue is only when mother is negative and the child is having a positive blood group, क्योंकि इनके पास ऐसे एंटीजन है जो इनके पास नहीं है, और इसीलिए हमारी बॉडी, मदर की बॉडी क्या बनाएगी, उसके सामने एंटीबॉडी बनाएगी, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ द आरबीसीज. So that was about the RH blood grouping system. In the next class, we will now begin with the next topic, that is about the lymph and the further circulatory pathways.